خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی کے سیگمنٹ میں، اور آپ نے ابتدائی تعارفی پیکج دیکھا، اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، پاکستان کا بڑا سینئر نام ہے نعمان بھائی، وہ بات بھی کر رہے تھے، اور باقی ذرا باقاعدہ تعارف اور ڈیٹیل اقرار بھی بتائیں گے۔ بالکل، المصطفیٰ دنیا کے 75 ممالک میں امدادی سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے۔ 2005 سے اس کی برطانیہ میں رجسٹریشن ہوئی، اور اکتوبر 2023 سے غزہ میں بھی الحمدللہ بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر آنکھوں کے علاج کے حوالے سے، موتیے کے آپریشنز کے حوالے سے بہت سارا کام اب تک تقریباً 2,80,000 لوگوں کے آپریشنز کیے جا چکے ہیں، بگ نمبر الحمدللہ۔ سو المصطفیٰ ٹرسٹ پر آج بات ہوگی، اس کے کام کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد نواز کھرل صاحب، آپ ہیڈ آف میڈیا اینڈ پبلیکیشنز ہیں المصطفیٰ ٹرسٹ میں، سجاد اظہر صاحب آپ ٹرسٹی ہیں، اور کوشش ہوگی کہ ہم ویڈیو لنک پہ بات کر سکیں گلوبل چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ جناب عبدالرزاق ساجد صاحب سے، اگر کنیکٹ ہو جاتا ہے تو۔ نواز صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ تھینک یو۔ ہمیں ذرا بتائیے کہ 2005 میں اس کی جو ضرورت کا احساس بالعموم 2005 میں بہت سارے ادارے زلزلے کی بنیاد پر ان کا قیام عمل میں آیا تھا، تو اس کی کہانی کیا ہے المصطفیٰ کی، اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو؟ بہت شکریہ سید اقرار الحسن صاحب۔ ایک تو آپ نے ٹھیک کہا، زلزلے کے بعد چونکہ ایک بڑے پیمانے پہ تباہی آئی تھی، تو یہ انسانی خدمت کا جذبہ اجاگر ہوا، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری تنظیمیں مارز وجود میں آئیں۔ کچھ اسی طرح کا المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا بھی قیام تھا۔ ہمارے چیئرمین عبدالرزاق ساجد صاحب جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے بہت نیک نیتی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی، اور ان 20 سالوں میں الحمدللہ اب 25 ممالک میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا بہت مؤثر اور بہت متحرک نیٹ ورک موجود ہے، اور پاکستان کے بھی 4 صوبوں اور آزاد کشمیر میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ مجموعی طور پہ 75 پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے۔ لیکن ہمارا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سب سے نمایاں، وہ آنکھوں کا علاج، معالجہ اور سفید موتیا کے آپریشن ہے۔ اس سلسلہ میں ہم پچھلے برس سے پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت میں سارا سال ہمارا فری آئی کیمپوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سوائے رمضان شریف کے اور شدید سردی کا موسم ہم سٹاپ کرتے ہیں، الگ سے ٹیم ہے، سرجن ہیں، بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، ماہرین امراض چشم ہیں، لوگوں کی دہلیز پہ پہنچ کے کیمپ لگا کے ان کی آنکھوں کی روشنی بحال کی جاتی ہے، اور ان کیمپوں کے نتیجے میں 2,80,000 سفید موتیا کے آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے 2,80,00,000 بجھی ہوئی آنکھوں کی روشنی پھر سے بحال کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، تبدیل کر دینے کا معاملہ اور یقین کریں بہت سارے ایسے علاقوں میں بھی ہم کیمپ لگاتے ہیں جہاں 10-10 گھنٹے لوگ پیدل سفر کر کے پہنچتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہم پہنچتے ہیں، اور کیمپ لگانے کے بعد 1 ہفتے کے بعد فیڈ بیک کے لیے دوبارہ سے وہاں پہ ہمارا ڈاکٹر جاتا ہے، اور یہ کیمپوں کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ بہت سارے کیمپوں میں آنے والے مریضوں کو کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے ہسپتالوں کا، ان میں بھی ہم اسی طرح آنکھوں کے آپریشن بھی ہوتے ہیں، دیگر جو امراض ہیں ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ لاہور میں المصطفیٰ آئی ہاسپٹل مزنگ روڈ پہ نہر اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ پاکستان کا واحد ہاسپٹل ہے جس میں پرچی کے پیسے بھی نہیں لیے جاتے، اور پرچی سے آپریشن تک تمام سہولیات مفت ہیں۔ اسٹیٹ آف آرٹ آپریشن تھیٹر، پاکستان کے جو ٹاپ 10 سرجن ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ناصر چودھری اور پروفیسر ڈاکٹر شہد نذیر، جن کا ٹاپ 10 سرجنز میں شمار ہوتا ہے، وہ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل میں سرجن کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اٹک میں تحصیل ہزروں کا ایک قصبہ ہے خورا خیل، وہاں پہ المصطفیٰ ہاسپٹل ہے، اور وہ جرنل ہے، وہاں ہر طرح کے امراض کے وہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں، علاج معالجہ ہوتا ہے۔ مانسہرہ میں خیبر پختونخوا کے اندر ہزارہ یونیورسٹی کے بالکل پڑوس میں ڈوڈھال میں المصطفیٰ ہاسپٹل ہے، 6 منزلہ شاندار بلڈنگ، ہر طرح کی مشینیں، جدید آلات، اور ہر طرح کا وہاں پہ بھی علاج معالجہ ہوتا ہے۔ تو یہ آنکھوں کے حوالے سے ہمارا ایک سفر ہے جو جاری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آنکھ کی روشنی بجھ جائے تو انسان کی چلتی ہوئی زندگی رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، وہ روشنی پھر سے بحال ہو جائے تو انسان کی زندگی رکی ہوئی پھر سے چل پڑتی ہے۔ ابھی اسلام آباد میں بحریہ انکلیو میں جگہ کا بندوبست ہو گیا ہے، وہاں پہ ہاسپٹل کی تعمیر شروع ہو رہی ہے، اور بہت انٹرنیشنل معیار کا اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل وہاں بھی بہت جلد بنے گا۔ اس سلسلے میں ظاہر فنڈز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرپور کے بہت نواح میں ایک قصبہ ہے ڈڈھیال، وہاں پہ بھی ایک ہاسپٹل کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ 1 سال ڈیڑھ میں وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا۔ تو یہ سفید موتیا کا مرض بہت بڑھ رہا ہے،
चूँकि बर वक्त इलाज नहीं होता उसके नतीजे में, तो अगरचे हम अपनी बसात के मुताबिक 2,80,000 आंखों की रोशनी बहाल कर चुके हैं, लेकिन हमारा अज़्म ये है, हमारा हदफ ये है कि पाकिस्तान को सफ़ेद मोतिया से पाक किया जाए। इस सिलसिला में हम चाहते हैं मज़ीद हॉस्पिटल कायम हों, ये फ्री आई कैंपों का सिलसिला मज़ीद बढ़ाया जाए। अब एक टीम है तो 2-3 टीमें बनाई जाएँ। तो इस सिलसिला में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। तो ये इसके लिए हम ख़ास तौर पर दरख्वास्त करेंगे लोगों से इंशाल्लाह, और आप टेलीविज़न स्क्रीन पर अल-मुस्तफ़ा की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देख रहे हैं, अल-मुस्तफ़ा की वेबसाइट भी, जहां यकीनन ऑनलाइन डोनेशंस भी दिए जा सकते हैं, और उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर जूम पे कनेक्ट भी हो गए बाय द वे, वो हमारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर उनसे हम बात कर लेते हैं। और जनाब अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का करम फजल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा हमें प्लीज़ बताइएगा, अल-मुस्तफ़ा के काम के हवाले से हमने बड़ी ज़रा तफसील से बात की खरल साहब से, ख़ास तौर पर आँखों के ऑपरेशन के हवाले से। गज़ा पर अगर हमें थोड़ा सा बताइए कि अल-मुस्तफ़ा क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, ताकि ज़रा देखने वालों को अंदाज़ा हो कि अल-मुस्तफ़ा किस तरह की सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक है खैरुन्नास यनफ़उन्नास। इसी हदीस के रहमत के हवाले से जैसे कि मेरे दोस्त निवाज खैर ने बताया कि 25 कंट्री में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का नेटवर्क मौजूद है जी। बमाया USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, क्या बात है, और बाकी मुल्कों में। इस तरह आपने बात की गज़ा की, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मेरे दिल के बहुत करीब है ये प्रोजेक्ट हमारा। ऐसा ही है। गज़ा में हम पिछले 12 सालों से हम काम कर रहे हैं गज़ा के अंदर, और इस तरह यरूशलेम के अंदर, किबला अव्वल के अंदर। गज़ा की जब ये वार शुरू हुई 7 अक्टूबर को 2023 में, उस दिन से लेकर आज तक हम गज़ा में मौजूद हैं, हमारी टीमें मौजूद हैं। 5 हमने हॉस्पिटल बनाए, फीड हॉस्पिटल गज़ा के अंदर, जो रेड क्रिसेंट गज़ा से मिलकर हमने बनाए। और हाशमियत चैरिटी एक है, शाही ख़ानदान है जॉर्डन का, उनकी चैरिटी है हाशमियत ट्रस्ट। उन सब मिलकर हम एवरी वीक वहाँ फूड पहुँचा रहे हैं, मेडिसिन पहुँचा रहे हैं, क्लीन वाटर पहुँचा रहे हैं। और गज़ा का तो ऐसा अलमिया है कि मैं समझता हूँ पूरी उम्मत पर कर्ज है गज़ा के लोगों का, बेशक, जो उन्होंने कुर्बानी दी है। जो ये मेरे बिलीव है इस बात पर कि ये सवाल तो क़यामत दिन होगा सरकार की बारगाह में, गज़ा के लोग हम पर सवाल करेंगे। मेरे आका, हम तो वहाँ मर रहे थे, बच्चे हमारे ज़िबा हो रहे थे, कि करबला व बरपा थी, एक आपकी उम्मत कहाँ थी। हम इसी निशानदेही के तहत अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, जो हमारी हिम्मत है, जो हमारी ताकत है। आप बिलीव करें कि दिन रात हम वहाँ काम करते हैं, और मैं इस बात फ़ख्र महसूस करता हूँ जितना हमने डिलीवर किया है गज़ा के अंदर, शायद कोई ना कर सका हो। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, उसका फजल है। मुझे खुद वहाँ जाने का इत्तेफाक भी हुआ, वाह, कई बार। अच्छा। और ये इसी तरह जो किबला अव्वल है, वहाँ हमने पिछले 5 सालों से, वहाँ आप देखें कि ये हाशमियत जो चैरिटी है जॉर्डन की, जॉर्डन शाही फैमिली के ख़ानदान की, वहाँ सरपरस्ती में गज़ा किबला अव्वल के अंदर इंतज़ाम सलाम होता है। हमारा उससे मैदा हुआ, शाही ख़ानदान के अंदर मैदा मार हुआ, हम उनके वहाँ गए, और वहाँ से लेकर आज तक वहाँ एक कुरान सर्कल चल रहा है, जिसका नाम या मुस्तफ़ा कुरान सर्कल है। ओके, माशाल्लाह। वहाँ हम वो 7 किरत में कुरान जी पढ़ाया जाता है, और 7 किरत जो कुरान पढ़ाते हैं टीचर जो लेडीज़ हैं या मेल है, सबको तनख्वाह हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह जो लोग वहाँ पढ़ने आते हैं, जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, यरूशलेम के इर्द गिर्द रहते हैं, किबला अव्वल के इर्द गिर्द रहते हैं, उनको हम एवरी मंथ $2,000 का उनको वोचर देते हैं। अच्छा, ये वोचर है, आप जाएं फला दुकान से आप चीज़ें खरीद लें। उसमें हमारी ख्वाहिश है, एक तो वो जो हमारे मुसलमान बिजनेस कर रहे हैं उनको सपोर्ट होगी, दूसरे लोग जो पढ़ने आते हैं वहाँ आते आकर बैठते हैं और उन लोगों को सपोर्ट होगी। तीसरा ये है कि किबला अव्वल के अंदर हर वक्त सुबह से लेकर फजर से लेकर इशा तक वहाँ कभी रहेगी, आबाद रहेगा, किसी को मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे इस तरह हमारे बर्मा प्रोजेक्ट है। बरूद में खुद गया लबनान में, जब पिछले साल वार शुरू हुई थी। बर्मा में कोई 14 दफ़ा जा चुका है बर्मा के अंदर। और इसी तरह शाम में हमारा काम है, इसी तरह हमारा जॉर्डन में, अपना यमन में काम है,
इस तरह हमारा सूडान में काम है। ये सारा वो सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा दिन रात काम कर रही है, और हमारे वॉलंटियर मौजूद, हर जगह मौजूद है, हमारा सेटअप मौजूद है। दुनिया भर में हमारे हॉस्पिटल जो लोगों से हमारे राब्ते हैं, जैसे बर्मा में हम एक हॉस्पिटल है तो मिलकर काम कर रहे हैं, बांग्लादेश में मिलकर काम कर रहे हैं, दुनिया भर में हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। और ये तब मुमकिन हो रहा है जो हमारे जो डोनर है जी, जो मैं उनकी सपोर्ट साथ है वेट करते हैं या, और उनकी सपोर्ट की वजह से ये काम हो रहा है। और हमारी ये ख्वाहिश है इस काम को मजीद वसी करें इंशाल्लाह। इतना वसी होगा कि जब आप जैसे मुखलस दोस्त वसी बदामी जैसे, आप इकरार हसन जैसे, आप जैसे सैयद भी हैं, तो आप सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला इस काम को और आगे बढ़ाएंगे और वो उन जगहों तक पहुंचेंगे जहां अभी तक 25 के बाद जो अगले मुबालिक हैं इंशाल्लाह आप पहुंच सकेंगे इंशाल्लाह। रज़ाक साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश ज़ाहिर है इसकी जज़ा तो परवरदिगार दो आलम की बारगाह से ही मिलेगी। हम दुआ गो हैं आपके लिए, माशाल्लाह सलामत रहिए, थैंक यू सो मच। बस सज्जाद साहब आप ज़रा कुछ ऐड कर दीजिएगा बहुत तफसील से, पाकिस्तान में जो काम हो रहा है आँखों के ऑपरेशन के हवाले से शानदार, 2,80,000 ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और गज़ा के हवाले से भी बड़ी तफसील से बात हुई। आप बताइएगा जो आपकी वाबस्तगी अल मुस्तफ़ा के साथ और इसका जो काम है, और ताकि हम फिर लोगों से डोनेशंस के लिए रिक्वेस्ट करें। जी बहुत शुक्रिया। वो अहमद फराज का एक शेर है कि शिकवे ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो देखें ये पाकिस्तान के अंदर गुर्बत आप देखें कि जो ताज़ा इशारिये हैं 28.9% जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं लोग। अब ये जो लोग हैं इन्हें अपने रोज़मर्रा मसाइल के हवाले से, खुराक के हवाले से, शेल्टर के हवाले से, और बिलखुसूस जब ये आफतें आ जाती हैं, कोई जंग हो जाती है, कोई कुदरती आफत आ जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं ये लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं। इनके लिए फिर जो पहली उम्मीद है ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जैसे जो इदारे हैं, हम जाते हैं हर जगह पे, इन्हें इलाज मुआवजे की जो सहूलतें होती हैं वो पहुंचाते हैं। जैसे आप देखें कि जो हालिया सैलाब था, हमने 22 ज़िलों के अंदर काम किया। 11 लाख लोग जो है उन तक जो हमने इमरजेंसी रिलीफ पहुंचाया है, और हमने उनको शेल्टर फ्राहम किया, हमने उनको फर्स्ट एड दी। अब खुश्क राशन रमज़ान तक हम उनको दे रहे हैं। उनके लिए कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ हम उनको घर बना के दे रहे हैं। और इसी तरह हमारा एक फ्रीडम प्रोजेक्ट है। फ्रीडम प्रोजेक्ट के अंदर हम ये जो जेलों में मामूली जराइम में मुलविस लोग होते हैं, इनकी जब सज़ा पूरी हो जाती है तो इन्हें रिहाई के लिए जो इनके जुर्माने होते हैं ये नहीं दे सकते, और कई महीने ये जेलों के अंदर ख़वातीन ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं, बच्चे उनके साथ होते हैं, तो हम इन लोगों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बटाखस्त मजदूर होते हैं, बाउंडेड लेबर है, इसके अंदर जो है वो तकरीबन 23 लाख लोग जो हैं वो बाउंडेड लेबर का शिकार हैं। इन लोगों की रिहाई के लिए मुस्तफ़ा वेलफेयर बड़े मुख्तलिफ कर रहा है काम है। अल्लाह ताला ये बड़े वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे सेंटर्स हैं, राइट, एजुकेशन के लिए हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो हम जो चला रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपनी बिसात के मुताबिक तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम इन प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना चाहते हैं जहाँ पे हमें लोगों की और इसकी ज़रूरत भी हेल्प चाहिए। बिल्कुल ऐसे जनाब, क्या कहने, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला कामयाब करे। आप लोगों का जज्बा बहुत कदर से देखते हैं हम इसको, और बहुत सारी दुआएं हम अपने हिस्से से हम जो कर सकते होंगे ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम ने कोशिश की कि इस सेगमेंट में इस पर बात करें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी नेक तमन्नाएं, सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए और अपने तौर पे जो कुछ आप कर सकते हो इस इदारे से मुताल्लिक जिस भी अंदाज से कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो ज़रूर कीजिए। और जाते आते ईजी पैसा की जानिब से भी ये अनाउंसमेंट की ईजी पैसा डिजिटल बैंक रमज़ान में आप समझ लीजिए कि ईजी पैसा डोनेशन वाला बैंक है कि आप ईजी पैसा ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो 60+ NGOs को आप डोनेट कर सकते हैं बहुत आसानी से घर बैठे हुए। तो बड़े आसानी से आप काम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की NGO सेलेक्ट करके, और हर डोनेशन पर ऑन एवरी डोनेशन यू मेक 5% इजाफी ईजी पैसा की 5% से जो है वो जो अपनी तरफ से ऐड करेगा ईजी पैसा। सो वन सेकेंड बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हम आते हैं ब्रेक के बाद उलमा-ए-कराम के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।